Ajay Shah here, and today we are discussing on one of those very important topic. The important topic is of e-invoicing, right? Applicability of this e-invoicing, what is e-invoicing, and why we are discussing e-invoicing that we shall discuss today. So first, let us understand this whole division is divided into various parts. So the first part what I want to discuss over here is why e-invoicing is important for us. In the second part, what we shall discuss is what basically the basic details of e-invoicing is. And the third part, what we'll discuss is the applicability, how to generate e-invoice, and what are the details that are required. So the first thing what we want to discuss is why e-invoicing is important. Now, e-invoicing is important for every registered person, whether you are generating invoice or you're not generating invoice, whether it is applicable to you or not applicable to you. E-invoice is required or to be understood compulsory. It is very important for everybody to understand. Now, e-invoice is something which under rule 48.4 it is to be created in CGST rules, right? And it prescribes a specified manner of the invoice. Now, this whole session what we are discussing, I would request you to have a pen and a paper with yourself so that you can understand, so that you can write it down, the important terms, the important things what we are discussing. So the first thing what I want to specify is what is e-invoice. E-invoice is a specified manner. It is just a specified manner or a format which is being given under rules CGST rules 48.4. Second thing what is very good, that specified manner in which you will prepare an invoice will be known as your e-invoice. That specified manner in which an invoice will be prepared will be known as e-invoice. And that e-invoice as of now, it is applicable from 1st October for a person or a registered person having turnover above 500 crore, and it will be applicable for a registered person whose turnover would be above 100 crore from 1st January for all B2B transactions, credit note, debit notes related to B2B transactions. So as of now, this e-invoice is applicable from 1st October for above 500 crore, and for us, the turnover who are having 100 crores, it will be applicable to you from 1st January. The importance of e-invoice, why it is been shown, is that the specified manner is nothing but a preparation of normal invoice what is given, right? It is a specified format which you need to upload to generate a invoice reference number. Now there are three terms which we shall discuss over here. Term number one, invoice reference number. What is IR, invoice reference number? That is IRN. So please note it down. Wherever we say IRN, it is a invoice reference number what we are talking of. Number two, what we will be discussing is IRP, invoice registration portal. So it is a invoice registration portal what we'll be discussing with. And number three, what we are discussing is of e-invoice portal. That is a e-invoice portal where I would mention. So wherever I say IRP, it is invoice registration portal. Wherever I say IRN, it is invoice reference number. And wherever we say a portal or invoice generation portal, it is actually e-invoice portal. Now, when a e-invoice is applicable, I repeat my words, why it is important, that is, let us understand that first. Whenever an e-invoice is applicable, the first and very important thing is the registered person to whom e-invoice is applicable, you have to receive a invoice from that registered person on which IRN, that is a registered invoice which is valid through or which has been notified through invoice registration portal. So invoice will be only valid if it is generated through invoice registration portal. If invoice is not generated from invoice registration portal, it becomes an invalid invoice. And if it becomes an invalid invoice, the receiver of that goods or the services will have, it will consider as invalid. So input tax credit cannot be claimed. Hence, if there is an invalid invoice, a registered person to whom e-invoice is to be generated doesn't generate an e-invoice, then it becomes invalid invoice. And if it becomes an invalid invoice, input tax credit cannot be claimed on that invalid invoice. And that is the reason why every taxpayer should know why it is important to understand e-invoice. To all those taxpayers to whom e-invoice is applicable from 1st October या फिर 1st January, जभी से भी या फिर 1st अप्रैल जब से भी ये ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा, वो सप्लायर्स को
इनवॉइस वैलिड तभी गिना जाएगा जब वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP के थ्रू वैलिडेट होगा। इफ इनवॉइस IRP के थ्रू वैलिडेट नहीं होता है तो वो इनवॉइस वैलिड नहीं है। सो आप अगर कभी भी क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ एनी इनवॉइसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक कि आपके सप्लायर ने आपको वैलिड इनवॉइस दिया है या नहीं। अब द क्वेश्चन इज सर वो कैसे चेक कर पाएंगे कि इनवॉइस वैलिड है या नहीं। इनवॉइस वैलिड होने के लिए आपको सप्लायर का स्टेटस वेरीफाई करना पड़ेगा। सप्लायर का स्टेटस आप ई इनवॉइस जनरेट करने वाले सारे सप्लायर्स का लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं विच इज अवेलेबल ऑन e-invoice1.gst.gov.in। e-invoice1.gst.gov.in से आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि कौन से सप्लायर के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। आप स्क्रीन में हमारा स्क्रीनशॉट भी चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स में अगर आप चाहेंगे तो वहां पे लिस्ट ऑफ इनवॉइस मेंशन किया गया है। इन दैट लिस्ट ऑफ इनवॉइस यू कैन डाउनलोड दैट। सो for downloading this you do not require a registration or a login ID or password. Nothing is required to access this list. You can simply go access the list and check कि whether आपके जो सप्लायर्स हैं वो ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन हुए हैं और वो ई इनवॉइस के enabled पोर्टल पे हैं या नहीं। नेक्स्ट आप वो चेक के लिए आप अपने सप्लायर का वेरीफाई कर सकते हैं स्टेटस। इफ आपको पूरा लिस्ट वेरीफाई नहीं करना है, इट मे हैपन दैट व्हाइल वेरीफाइंग दिस लिस्ट आपको ऐसा हो कि बहुत सारे रजिस्टर्स हैं तो मुझे वेरीफाई नहीं करना है इंडिविजुअल, हाउ विल वेरीफाई, तो आप इंडिविजुअल सप्लायर स्टेटस भी वेरीफाई कर सकते हैं। what you need to do is you to again go to the same portal e-invoice1.gst.gov.in, mark this down e-invoice1.gst.gov.in, go to this, make sure you again no registration or valid ID is required, click e-invoice status of taxpayer, we again हमने यहाँ पे आपको जनरेट किए हैं, the screenshots are over here, go to that column of invoice status of taxpayer, एंटर द GSTI नंबर। GSTI नंबर एंटर करने के बाद आप वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर दिस इज अनेबल्ड, ई इनवॉइस इज अनेबल्ड और नॉट। इफ ई इनवॉइस इज अनेबल्ड दैट मींस you have to make sure that supplier issues you a valid invoice. It will be valid only when the invoice is been validated from invoice registration portal. Now, once you verify this, next what you need to verify is you need to verify the invoice of the supplier. How to verify the invoice of your supplier? So this is a process what we are talking about. First thing जो हमने डिस्कस किया वो ऐसा था कि आपको पहले ही चेक करना है कि सप्लायर अनएबल्ड है या नहीं। अगर सप्लायर अनएबल्ड है तो आपको ये देखना है कि सप्लायर आपको वैलिड इनवॉइस इशू कर रहा है या नहीं। हाउ टू वेरीफाई कि सप्लायर ने जो इशू किए हैं इनवॉइस वो वैलिड है या नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज ऑब्टेन अ जेसन साइंड जेसन फाइल फ्रॉम द सप्लायर। अपने सप्लायर को कहिए कि साइंड जेसन फाइल, आपके इनवॉइस का साइंड जेसन फाइल आपके साथ शेयर करें। सेकंड इज वो जेसन फाइल को आप वेरीफाई कर सकते हैं ई इनवॉइस सिस्टम के ऊपर। गो देयर, अपलोड दैट साइंड जेसन फाइल। आप जैसे अपलोड करोगे ई इनवॉइस पोर्टल पर, वो पोर्टल विल इंडिकेट वेदर द इनवॉइस इज ड्यूली रजिस्टर्ड, IAN जनरेटेड एंड ड्यूली साइंड बाय इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आप जेसन फाइल जो साइन की गई है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने सप्लायर के पास से जेसन फाइल मंगवाइए, उस जेसन फाइल को आप पोर्टल पे जाके अपलोड कीजिए। वहां पे इट विल मेंशन द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, वेदर इट इज वैलिड इनवॉइस और नॉट, एंड फ्रॉम देयर इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो भी आपको जनरेट होगा उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं वेदर इट इज वैलिड और नॉट। सो वंस यू वेरीफाई व्हाट इज योर सप्लायर्स स्टेटस, राइट, after that you need to verify your invoice. This is the one method. So always make sure all those suppliers who are enabled under e-invoice portal, ask them to provide you a registered signed JSON file. That is what I'm saying is signed JSON file आपके पास आए। Make sure for all those e-invoice applicable invoices you have a signed JSON file. Store it somewhere that would be useful for you to understand whether the invoice is valid or not. One more way to verify is through QR code, right? In invoice, QR code is compulsory for all those invoices which are generated through invoice registration portal. So how will you verify through QR code is a QR code will be duly mentioned or it will be duly signed by invoice reference number, and it is necessary, it is mandatory for considering a valid invoice. Now printed QR code on the invoice is compulsory, so from that QR code you can scan
and you can verify with the help of mobile application, and for that application you can download from the portal. So through that mobile application which you can download from portal, you can verify a QR code, that all the information will be given in QR code about the validity of an invoice. Now sir, how to, what are the details that shall be available on this QR code, or what are the details that we shall get it from this? So in that case I'll mention the first thing is QR code. What you're talking about QR code, how to download that app for QR code. To download that app of QR code, you need to go through, it will not be downloaded from Play Store, neither it will be available from any iOS. All you need to do is you need to visit a e-invoice portal. On that e-invoice portal, again there is a screenshot what you can see on e-invoice portal. You can go to help, tools, and QR code verify app. From that QR code verify app, a message, you can write down your number over there, a message will be dropped to your mobile number, and that click the link on that message and app will be downloaded on your cell phones. So from that app also you can verify the QR code. On the basis of QR code you can verify the e-invoice is valid or not. So there are three ways what we are discussing. Number one is that first of all you need to obtain a signed JSON file. From that signed JSON file, you can verify that whether the invoice is valid or not. Number two is from this QR code, you can verify that whether it is valid or not. Now, for QR code, you need to download the app first. Once you download the app, you can scan a QR code. How will you be able to scan? Whatever the details that are mentioned in QR code, the details are supplier ka GSTI number, recipient ka GSTI number, invoice date, invoice value, HSN code, number of line items of that invoice, and IRN number, that is invoice reference number जो हमने डिस्कस किया, वो आपको वहां पे मेंशन किया गया मिलेगा. Lastly, issued by NIC. Screenshot again we have mentioned over here कि QR code signed कैसा, QR code जब आप scan करोगे तो how will you be able to verify this? So once you verify all these three basic details, what I am saying, the first is whether the invoice is to be issued by the whether the registered person for whom invoice is enabled. Make sure you check your receipt supplier first. Second important thing is check through that signed JSON file whether the invoice is valid or not. And third important thing is once you check that from your QR code also you can verify whether the invoice is valid or not. Once the invoice is valid, you may claim input tax credit. Until unless the invoice is not valid, make sure input tax credit cannot be claimed. And being a receiver of the goods or services, kindly understand and kindly follow this compliance of importance of e-invoicing. Further, now let us discuss what is e-invoice about. What are the basic details that would be required for e-invoice? E-invoice basic details, what I'm talking is, it is a standard format. It is a standard format. It is basically a schema. What is the standard format is known as schema. That standard format is processed electronically, and that is why it is known as e-invoice. When a standard format is processed electronically, it is known as e-invoice. Your invoices would remain same, but a standard format all over the country, a standard format for invoice उन्होंने mention किया गया है. That standard format is schema. That schema simply gives a structure template जो available है invoice portal पर. On that basis आपको invoice में क्या क्या details देनी है, कैसी details देनी, वो वहां पे mention किया गया है. सेकेंड, आपको एक सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट एप्लीकेबल होगा सारे बिजनेसेस के लिए, एंड दैट सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज इनवॉइस. सो अगर ऐसा है कि हमें एक नया अलग से इनवॉइस जनरेट करने पड़ेंगे, हमको इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करना पड़ेगा, इट इज नॉट सो. आप अपने सिस्टम में, अपने ईआरपी में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इनवॉइस जो उन्होंने सजेस्ट किया, फॉर्मेट डिस्क्राइब किया है, दैट इज स्कीमा जिसको बोला जाता है, उसके बेसिस पे आपको इनवॉइसेस बनाने हैं. अब उस फॉर्मेट में दो टाइप के डिटेल्स होंगे. एक होता है मैंडेटरी डिटेल्स, एक होते हैं ऑप्शनल डिटेल्स. डेटा दैट इज टू बी फील्ड मैंडेटरी, वो कंपलसरी आपको फिल करना पड़ेगा. यू कैन नॉट स्किप दैट इंफॉर्मेशन. सो मैंडेटरी फील्ड्स आपको कंपलसरी वहां पे लिखनी ही पड़ेगी. इफ मैंडेटरी फील्ड में कोई वैल्यू नहीं है तो आप वहां पे नील मेंशन कर सकते हैं, एंड दैट मैंडेटरी डिटेल विल बी कंसिडर्ड एज फील्ड इफ यू राइट डाउन नील ओवर देयर. Second is field which are marked as optional. Those are optional field. You may select those or you may not select those. But once you select an optional field, there are few details in that optional scheme which becomes mandatory. So अगर आपने एक बार ऑप्शनल स्कीम या ऑप्शनल फील्ड पे सिलेक्ट किया, उस ऑप्शनल फील्ड के रिलेटेड जो भी मैंडेटरी फील्ड्स है वो आपको वहां पे वेरीफाई करना पड़ेगा.
से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ई वे बिल डिटेल्स जो ऑप्शनल है, if you select e-way bill details and that is marked as optional, then in that case you have to select mode of transportation. Mode of transportation becomes a mandatory field over there. So understand दो टाइप की फील्ड्स हैं, मैंडेटरी एंड सेकेंड इज ऑप्शनल. अगर आप मैंडेटरी सिलेक्ट करते हैं तो आपको सॉरी अगर आप मैंडेटरी फील्ड्स में तो आपको वहां पे सारी डिटेल्स देनी होगी. इफ इन केस मैंडेटरी इज नॉट एप्लीकेबल टू यू, NIL नील वहां पे मेंशन किया जा सकता है. ऑप्शनल फील्ड आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो. इफ यू आर नॉट फिलिंग दैट ऑप्शनल फील्ड, आप ऑप्शनल फील्ड को सिलेक्ट करते हो तो उसमें दी गई मैंडेटरी फील्ड्स आपको कंपलसरी फिल करनी पड़ेगी, जो हमने डिस्कस किया कि इफ यू सिलेक्ट ई वे बिल डिटेल तो आपको कंपलसरीली वहां पे डिटेल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा वो फिर. सो प्लीज टेक केयर वाइल फॉर्मिंग दिस कि अगर आप ऑप्शनल फील्ड सिलेक्ट कर लेते हैं तो मैंडेटरी उस ऑप्शनल फील्ड में जो मैंडेटरी वो भी आपको मेंशन इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली देनी पड़ेगी. नेक्स्ट, e-invoice portal. जैसा मैंने कहा कि there are three terms which we are discussing over here: IRN, IRP and e-invoice portal. E-invoice portal is a website on which uploading or reporting of invoice will be done by a notified person. जो भी persons notified है वो वहाँ पे invoice upload करेंगे और report करेंगे. Secondly, उसे invoice registration portal भी कहा जाता है. आप invoice registration portal पे जाके, that is again e-invoice portal what you call it as, and उसका website is einvoice.gst.gov.in. The website name is einvoice.gst.gov.in. I repeat, पहले जो हमने मेंशन किया था einvoice1.gst.gov.in, that was mentioned as a website where you can check the status of your suppliers. Now this is a website einvoice.gst.gov.in where you can generate your invoices. That is a screenshot what we have mentioned over here. Further, अब who are the notified person? As I said, notified person are those जिसका aggregate annual turnover is of 500 plus crore or 100 crore in any financial year, pan in level and notified for e-invoicing. I repeat my words. From 1st October, register person जिसका turnover 500 crore से ज्यादा था, और from 1st January से register person जिसका turnover 100 crore से ज्यादा है, for them इन एनी फाइनेंशियल पैन इंडिया लेवल बेसिस पे टर्नओवर कंसीडर किया जाएगा, उनको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है. सो एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. सो इफ यू से कि सर हमारा 18-19 में टर्नओवर 100 प्लस करोड़ था, 19-20 में इट हैज बीन 19 करोड़, तो क्या हमको 2021 से एप्लीकेबल होगा? यस. Any financial year, the term is any financial year, if your turnover exceeds 100 crore since the introduction of GST, that is 2017, आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है फ्रॉम 1st January. सेकेंडली, आप इररिस्पेक्टिव, अगर आपका एक बार रजिस्टर हो गया ई इनवॉइस, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर आपको ई इनवॉइस जनरेट करने पड़ेंगे. सो इट इज नॉट दैट कि सर ये ईयर में एक्सीड नहीं हुआ तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा या नहीं होगा. इट इज नॉट सो. एनी ईयर from the introduction of GST, this turnover limit is to be considered. Secondly, this turnover limit is to be considered on pan-India basis, right? So if you have multiple GSTI number, multiple locations, this is not considered to be the GSTI number-wise turnover. This is to be considered pan turnover, that is your pan number basis. Applicability of invoice. To whom this invoice is applicable? E-invoice is applicable to registered person for B2B and export transactions. It is applicable to government departments. It is applicable to government department register for TDS only. It is applicable to public sector undertaking. The person supplying goods or services under RCM. Very very important. Specifically bold किया गया है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो पर्सन इनवॉइस इशू कर रहे हैं, ना कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो टैक्स पे कर रहे हैं. अ पर्सन हु इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर उनका टर्नओवर एक्सीड होता है 100 करोड़ के अबव, तो उनको भी ई इनवॉइस देना कंपलसरी है. इफ यू आर अ रिसिपिएंट ऑफ द इनवॉइस ऑफ रिवर्स चार्ज एंड यू आर पेइंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, you are not supposed to issue a invoice for that payment of tax. SEZ developer को applicable है, again a very important. In the next slide I'll discuss specifically about SEZ developer. SEZ developer क्या है, SEZ units क्या है. Applicable to documents. Which are the documents to whom it is applicable? It is applicable to invoice, debit notes and credit notes, right? Bill of supply, delivery चालान पे e invoice applicable नहीं है. Invoice, debit notes and credit notes पे e invoice applicable है.
किसे ये एप्लीकेबल नहीं है? नॉट एप्लीकेबल टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि ये अपनी एक ही जीएसटीआई नंबर से अपने मल्टीपल जीएसटीआई नंबर्स को इश्यूज जनरेट करते हैं इनवॉइसेस, फॉर देम इट इज नॉट एप्लीकेबल. सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू the person that is registered as input service distributor. It is not applicable for import transactions. आपको import transactions पे ये applicable नहीं है. It is not registered, it is not applicable to B2B B2C supplies. Business to consumer supplies में भी applicable नहीं है. It is applicable only for B2B and export supplies. Secondly, the person who are receiving supplies under RCM, जिसको RCM में टैक्स पे करना है, उनको ये एप्लीकेबल नहीं है. सो इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज whom are paying in reverse charge mechanism. No, it is applicable for those who are supplying goods or service under reverse charge mechanism. Now as I said कि मैं next slide में discuss करूंगा about SEZ developer. Now the thing over here is that SEZ units, special economic zone जो units हैं, SEZ units are exempted under e-invoice. They are not supposed to generate e-invoice. If you are registered as SEZ unit, आपको e-invoice applicable नहीं है. E-invoice SEZ developers को applicable है, not a SEZ unit. Secondly, free trade and warehousing zones are only a special category of SEZ exempt from e-invoice. And a very important understanding is that अगर SEZ unit exempted है from e-invoice, तो सवाल आएगा कि सर SEZ units को तो applicable नहीं है पैन इंडिया बेसिस पे अगर हमारे दो registrations हैं, say for example one registered is DTA and another is SEZ. In that case SEZ unit को e-invoice applicable नहीं होगा, but for calculating a limit of turnover, टर्नओवर का लिमिट आपका जो 100 करोड़ या 500 करोड़ वाला लिमिट है वो पैन बेस्ड गिना जाएगा. एंड इफ द टर्नओवर लिमिट एक्सीड्स डीटीए यूनिट, डोमेस्टिक यूनिट जो आपका रजिस्टर्ड है, दे हैव टू इशू ई इनवॉइस इफ एसईजेड यूनिट इज if another unit is in SEZ and it is exempted. So very important to understand is कि टर्नओवर पैन इंडिया बेस्ड पे गिना जाता है. पैन इंडिया बेस्ड पे अगर आपका लिमिट कंसीडर हो गया तो आपको ई इनवॉइस डीटी यूनिट्स को एप्लीकेबल है, दो योर अदर रजिस्ट्रेशंस आर इन एसईजेड यूनिट्स. One of those very important point to understand. The fifth bullet point what we are talking over here is that there is an SEZ unit and a regular DTA unit having a same PAN. The aggregate turnover of the legal entity is more than 500 crore considering other GSTIN. In that case, however, the turnover of DTA unit is, though that turnover of DTA unit is below 100 crore, still that DTA unit has to generate e-invoice. SEZ units are exempted but not the DTA unit. Very important. So SEZ developers को applicable है, SEZ units को applicable नहीं है, as well as SEZ units के साथ same PAN number पे multiple registrations है. Though the domestic unit का turnover is not exceeding 100 crore or 500 crore, for them still it is applicable and they have to issue e-invoice. Right? Now who can generate an e-invoice? It can be only generated by the supplier. E-invoice can be generated only by supplier. The recipient or the transporter cannot generate e-invoice. अभी ई-वे बिल में ऐसा है कि ई-वे बिल आपका ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है, बट ई-इनवॉइस सिर्फ और सिर्फ सप्लायर ही जनरेट कर सकता है. E-commerce operator can generate on behalf of their seller, otherwise only supplier can generate an e-invoice. And as of now it is applicable for 500 crores from 1st October, 1st January 100 crores, but voluntarily और ट्रायल बेसिस पे अबव 100 करोड़ की टर्नओवर वाली लिमिट के टैक्स पेयर्स को अभी भी वो जनरेट कर सकते हैं. सो इफ योर टर्नओवर इज बिलो 100 करोड़ एज ऑफ नाउ, द विंडो टू जनरेट ई इनवॉइस फॉर दोस टैक्स पेयर्स इज नॉट ओपन. आपका अगर 100 करोड़ के अंडर टर्नओवर है तो आपके लिए वो विंडो ओपन नहीं है. आप ट्रायल रन भी अभी नहीं कर सकते हैं और आप ई इनवॉइस भी अभी जनरेट नहीं कर सकते हैं. ई इनवॉइस की पोर्टल पे या ई इनवॉइस वेबसाइट पर अभी सिर्फ वही टैक्स पेयर्स अलाउड है जिसका टर्नओवर इज अबव 100 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी. राइट? नाउ व्हाट आर द एग्जम्पशंस टू जनरेट ई इनवॉइस? सी, हमने इनिशियल फर्स्ट प्रेजेंटेशन पार्ट में ऐसा देखा था. व्हाट वी अंडरस्टूड वाज कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके सप्लायर को ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं. इफ सप्लायर इज अनएबल्ड फॉर ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी, वो इनवॉइस वैलिड तभी होगा जब वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू आपके पास वैलिडेट हो गया है. बट
कुछ सप्लायर्स या कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए जिसको ई इनवॉइस एप्लीकेबल या जनरेट करना जरूरी नहीं है। से फॉर एग्जांपल एसईजेड यूनिट्स, राइट। सो आपका सप्लायर वहां पे अनेबल्ड है पोर्टल पे, आपको ऐसा दिख रहा है कि सप्लायर को ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, बट इफ सप्लायर इज अंडर एसईजेड यूनिट तो वो एग्जम्प्टेड है, दैट मींस वो सप्लायर आपको इनवॉइस ई इनवॉइस जनरेट नहीं करेगा। सो दो यू चेक, आप एक बार चेक कर लो कि आपका सप्लायर को ई इनवॉइस ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर इट इज एप्लीकेबल और नॉट। बट इफ इट इज एप्लीकेबल, द सेकंड चेक इज क्या वो एसईजेड यूनिट है, तो उस केस में उनको एप्लीकेबल नहीं है। क्या वो बैंकिंग सेगमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, तो उनको एप्लीकेबल नहीं है। जीटीए सप्लायर है, उनको एप्लीकेबल नहीं है। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, उनको एप्लीकेबल नहीं है। और सप्लायर ऑफ बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन टू सिनेमाटोग्राफ और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स के हैं, तो उनको एप्लीकेबल नहीं है। सो इन टैक्स पेयर्स को या इन एंटिटीज को इट इज नॉट एप्लीकेबल। सो द एग्जम्पशन इज क्वा बिजनेस एंड नॉट क्वा एंटिटी। इट इज बिजनेस ओरिएंटेड, जीटीए यूनिट्स को एप्लीकेबल नहीं है, एसईजेड को एप्लीकेबल नहीं है। मेक श्योर यू चेक वेदर दे आर exempted और नॉट, बिकॉज सप्लायर अगर एक बार अनेबल हो जाता है और आप अगर उनके पास से ई इनवॉइस वैलिडेट करना चाहें तो पहले चेक कीजिए वो exempted है या नहीं। इफ दे आर exempted, उनको ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं करना है, दो देयर टर्नओवर में बी मोर देन 100 करोड़ और 500 करोड़, दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू वेरीफाई योर सप्लायर स्टेटस या आपका सप्लायर किस लिमिट में आता है। Secondly, important thing to understand is that whenever your supplier, as I said in the first half of my presentation, that whenever your supply is applicable, आप verify कर सकते हैं QR कोड के थ्रू या आप verify कर सकते हैं अपने signed JSON फाइल के थ्रू। either of the way you can verify whether it is valid or not. Next, what are the prerequisites? Now I am talking about if your turnover exceeds 100 crore in any financial year or 500 crore, what are the prerequisite mechanism for e-invoice? Business will continue to prepare and issue invoice as they are doing now. जैसे आप अभी invoice generate कर रहे हैं, जैसे आप अभी invoice issue कर रहे हैं, आप उसी तरीके से e-invoice आप invoice generate करेंगे, prepare करेंगे। आपको एक schema जो दिया गया है necessary, जो हमने पहले ही discuss किया, it is a format that is known as schema, वो you need to incorporate in your ERP और accounting system of billing software, आप उसको incorporate करवाइए। वो फॉर्मेट एज पर द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो स्कीमा दिया गया है वो इनवॉइस पोर्टल पे अवेलेबल है। फ्रॉम दैट स्पेसिफिक फॉर्मेट यू हैव टू मेक श्योर इनवॉइस कैन शुड बी जनरेटेड। सेकेंडली, अगर टैक्स पेयर जिसके कुछ इनवॉइसेस ही जनरेट होता है, देयर आर ओनली फ्यू इनवॉइसेस दैट आर टू बी जनरेटेड, इन दैट केस अगर वो ईआरपी के थ्रू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिकली एक ऑफलाइन टूल दिया गया है, दैट इज अगेन अवेलेबल ऑन ई इनवॉइस पोर्टल। आप ऑफलाइन टूल के थ्रू इनवॉइस जनरेट करने के लिए जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं। वो जेसन आपका ई इनवॉइस पोर्टल पे आप अपलोड करोगे तो आपका ई इनवॉइस जनरेट होगा। सो इफ यू आर नॉट यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिलिंग सॉफ्टवेयर, आप सेकेंडली ऑप्शन इज आप ऑफलाइन टूल के थ्रू भी आप जनरेट कर सकते हैं। बट ऑफलाइन टूल फ्यू इनवॉइसेस होता है जिसके बहुत मल्टीपल इनवॉइसेस हैं या दोज हु आर हैविंग large number of invoices, उनके लिए it is not advisable. For other it can be further, a mobile app is also expected to be made available for taxpayers. Mobile app की भी आने के chances है, from that mobile app also you can generate your e-invoice. Now there is a direct integration that can be done for generating an e-invoice, that is that integration between e-invoice system and your registered person's accounting system can be done through API, right? What is this API? What we are talking about is that this automatically एक interface generate करता है between your invoice accounting system and e-invoice system. Side to side integration of two system is done, and using this the taxpayer can link its IT system with the e-invoice system to generate IRN directly through his IT solution. So this is where IT role, or this is where IT persons are very important to understand this, that you can do an API integration with your system at invoice portal and your accounting system. The moment you generate an invoice on your accounting or billing software, directly it gets generated through invoice portal, also from API system. अब API आपको करने से क्या होगा कि डुप्लीकेट एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज एलिमिनेट, सारा मिस्टेक्स आपका जो एलिमिनेट हो जाएगा। और API आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उसका वेबसाइट है, एज वी हैव गिवन इन द फोर्थ बुलेट पॉइंट, einv-apis&box.nic.in. For a detailed API integration you need to visit this website. वहां पे आपको API integration कैसे करना है वो आपको पता चलेगा। Secondly, those taxpayers who are using
टैली एज ऑफ नाउ, अगर आप टैली ईआरपी यूज कर रहे हैं तो ई इनवॉइसिंग के लिए टैली ईआरपी वोंट बी एप्लीकेबल, वहां से आपका इनवॉइस नहीं जनरेट होगा, आपको टैली प्राइम के थ्रू ही इनवॉइसेस जनरेट होंगे. सो यू नीड टू अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर टू टैली प्राइम सो दैट आप ई इनवॉइस जनरेट कर पाओ. और एल्स आपके पास ऑफलाइन टूल का ऑप्शन है, बट ऑफलाइन टूल इज नॉट एडवाइजेबल अगर आप मल्टीपल इनवॉइसेस या ह्यूज लार्ज नंबर ऑफ इनवॉइसेस जनरेट करते हैं तो. सेकेंडली, रजिस्ट्रेशन इन इनवॉइस पोर्टल. अब आपके प्री रिक्वेजिट्स हो गए, आपने एपीआई जनरेट कर दिया, एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन, आपको एपीआई जनरेट करने के बाद हाउ टू रजिस्टर ऑन ई इनवॉइस पोर्टल. ई इनवॉइस पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए आपको व्हाट यू नीड टू डू इज ऑल द रजिस्टर्ड यूजर्स अंडर जीएसटी who are liable to generate IRN, that is invoice reference number, need to register to e-invoice system. आप रजिस्ट्रेशन टैब ऑन पोर्टल पे, आप रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपका जीएसटीआई नंबर मेंशन किया होगा, वो जीएसटीआई नंबर डालिए. जो भी आप, जैसे आप जीएसटीआई नंबर डालेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, विच रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑन जीएसटी पोर्टल, जिसके ऊपर आप जीएसटी और 133 फाइल कर रहे हैं, वो पोर्टल पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, दे विल रिसीव एन ओटीपी. वो ओटीपी के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, सिस्टम जैसे आप अनेबल करेगा आपको ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए. सो हाउ टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल इज, आप जाके जीएसटीआई नंबर मेंशन कीजिए, जीएसटीआई नंबर मेंशन करने के बाद आपको ओटीपी मिलेगा मोबाइल नंबर पे, वो आप एंटर कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. सेकंड थिंग इज, अगर आप ई वे बिल पोर्टल पे रजिस्टर्ड है तो वही सेम क्रेडेंशियल्स कैन बी यूज टू लॉग इन योर ई इनवॉइस पोर्टल. ई वे बिल के ही क्रेडेंशियल्स आपके यूज होंगे आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए. सो यहाँ पे अलग से आईडी बनाना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप आपकी ई वे बिल के क्रेडेंशियल्स भी यूज कर सकते हैं, और एल्स आपका जीएसटीआई नंबर वहाँ पे मेंशन आप कीजिए, आपको ओटीपी मिलेगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. Right, so what we have seen is why e-invoice is important. Secondly, what we saw is what are the basic things that you need to understand for e-invoice. Thirdly, what we saw is that how to do API prerequisites mechanism of e-invoice, कि आपको e-invoice बनाने के पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, e-invoice बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन आपको पोर्टल पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज हाउ, व्हाट इज द प्रोसेस टू अपलोड योर जनरेट योर e-invoice. नाउ once registration is done, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद सप्लायर विल कन्वर्ट द इनवॉइस इनटू जेसन फॉर्मेट. एज आई सेड, आपका इंटीग्रेशन होगा इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ, और एल्स आप ऑफलाइन टूल से एक जेसन फाइल जनरेट होगा. राइट, दैट जेसन फाइल विच इज बेसिकली स्टैंडिंग फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी एनुअल रिटर्न्स, और ये सारे आपके जेसन फाइल के थ्रू ही जनरेट होकर आप ऑफलाइन टूल में अपलोड करके रिटर्न्स फाइल करते हैं. सिमिलरली आपको इनवॉइस जनरेट करने के लिए भी जेसन फाइल जनरेट करना होगा. दैट जेसन फाइल आपको अपलोड करना होगा. सो फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयर एन इनवॉइस, क्रिएट अ जेसन फाइल, अपलोड दैट जेसन फाइल ऑन योर ई इनवॉइस पोर्टल. अब आप बल्क अपलोडिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए बल्क जनरेशन टूल इज आल्सो अवेलेबल, कि आप बल्क इनवॉइसेस की बल्क जेसन फाइल्स अपलोड करो, एक साथ आपकी सारी जेसन फाइल अपलोड हो जाएगी. बल्क जनरेशन टूल भी आपको पॉसिबली ऑफलाइन टूल उसका भी अवेलेबल है ऑन इनवॉइस पोर्टल, दैट यू कैन आल्सो डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड जनरेट मल्टीपल इनवॉइसेस एट अ same time through bulk generation portal. Once you upload the JSON file, what is to be done is upload the JSON file into the format. So पहले आप invoice बनाइए, invoice बनाने के बाद आपका JSON file create होगा, जैसे आपका JSON file create हो उसको आप पोर्टल पे अपलोड कीजिए. Once you upload, आपका invoice reference portal will generate a hash, right? A hash generated by invoice registration portal, that is invoice reference number will be created. अब invoice reference number create होगा उस invoice के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड. अब हम जब से हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया है, वेबिनार स्टार्ट किया है, तब से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर होगा. व्हाट इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा. बट जैसे आप जेसन फाइल अपलोड करोगे, एक आईआरएन जनरेट होगा, वो आईआरएन आपका आईआरपी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल वैलिडेट करेगा, इंश्योर करेगा कि वो वैलिड है या नहीं. once it gets valid, all the test checks are performed, validation will perform on the portal and the डॉक्यूमेंट विल बी रिपोर्टेड. सो अगर आपने एक ही इनवॉइस पे दो बार जनरेट करने की कोशिश की तो दोनों का IRN इट विल बी गेट मिसमैच एंड इट विल बी रिजेक्टेड बाय IRP. सो once an invoice is generated, you cannot do again a invoice reference number generation for the same invoice number. I repeat, एक बार आपका इनवॉइस अगर जनरेट हो गया, आपने इनवॉइस के बेसिस पे IRN जनरेट कर दिया, तो आपका सेकेंड टाइम वो इनवॉइस जनरेट नहीं हो सकता उसी इनवॉइस नंबर पर. राइट, सो
while you are uploading, while you're creating a registration number, IRN number, make sure it is a unique number. Once it gets created on the same invoice, second time it cannot be created. Very important to understand. Now, once this IRN steps to upload and generate, once this you receive this IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर ऐसे जनरेट होगा, सेंट्रल रजिस्ट्री IRP ऑथेंटिकेट करेगा, सिग्नेचर ऐड करेगा एंड क्यूआर कोड ऐड करके आपको वो जेसन फाइल, साइंड जेसन फाइल आपको वापस मिल जाएगा. आई रिपीट माय वर्ड्स, once you upload the details, IRN will be generated, IRN will be validated through invoice registration portal. Once it get valid, वो ऑथेंटिकेट करेंगे, उस IRN को साइन करेंगे, once signed उसके ऊपर QR कोड अटैच करके वो जेसन फाइल बना देंगे. After the invoice number will be generated by IRP. IRP invoice registration portal आपको वही digitally signed JSON फाइल आपको देंगे and आपके पास उस JSON साइन में QR कोड होगा. राइट, अब as I discussed in the earlier slides कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इनवॉइस वैलिड है या नहीं वेरीफाई करने के लिए आपके सप्लायर के पास से आप साइंड जेसन फाइल मंगाइए. दैट साइंड जेसन फाइल इज दिस व्हाट आई एम टॉकिंग टू. राइट, सो आप साइंड जेसन फाइल कौन सा है, वंस आईआरएन इज जनरेटेड, इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, डिजिटली वो आईआरएन साइन हो जाएगा, साइन होने के बाद क्यूआर कोड जनरेट होगा और क्यूआर कोड उसके साथ दैट जेसन फाइल विल बी अटैच्ड. नाउ डिजिटली जो साइंड है, जो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इट इज नॉट द सिग्नेचर ऑफ द ओनर. राइट, आपका डीएससी आपकी साइन नहीं हो रही है, वो डिजिटली इशूड बाय एनआईसी वाला सिग्नेचर आएगा, एनआईसी ने इशू किया है उसका डिजिटल साइंड है, तो आपका इनवॉइस या आपका सिग्नेचर उस पे नहीं लगता है, वो इनवॉइस पे एनआईसी का सिग्नेचर लगेगा. राइट, आईआरपी विल रिटर्न ओनली द साइंड जेसन, नो पीडीएफ विल बी रिटर्न. सो आप जेसन अपलोड कर रहे हो, जेसन ही आपके पास आ रहा है, आप एक जेसन जनरेट करके अपलोड कर रहे हो, वही जेसन के साथ एक आईआरएन जनरेट हो रहा है, साइंड जेसन साइन हो रहा है और आपको क्यूआर कोड अटैच करके वापस जेसन फाइल मिल रहा है. अब once you receive this JSON फाइल, आप अपने ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या बिलिंग सॉफ्टवेयर में उस JSON फाइल का जनरेट कर सकते हैं PDF if required. If required, you may convert that JSON signed JSON file into PDF. There are various tools to convert those JSON file into PDF. आप उसको PDF में convert कीजिए, but make sure once you receive the JSON, this JSON will not be stored on e-invoice portal. So आपके पास एक बार जेसन फाइल आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दिस डाउन इज once the invoice is received by you, it will not be stored on e-invoice portal. Right, there is no facility of storage, it merely performs validation and generation of IRN. So moment you upload the JSON, it gets signed होके वो वापस वैलिडेट होता है, वैलिड होके आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी ये इनवॉइस स्टोर नहीं होगा. राइट, सो जेसन फाइल, साइंड जेसन फाइल, कल्टिवेट अ प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन कि आप हर एक जेसन फाइल को स्टोर करें, हर जेसन फाइल को आप इनवॉइस नंबर वाइज या पार्टी वाइज, वेंडर वाइज आप उसको स्टोर करें अपने सिस्टम में, बिकॉज आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे ये वापस स्टोर किया हुआ है, कहीं से मिलने वाला नहीं है. एडवाइजेबल है कि आप उसको प्रॉपर्ली स्टोर करके प्रॉपर्ली मेंटेन करें. अब इस जेसन फाइल को आप पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, यू कैन जनरेट एन पीडीएफ ऑफ दिस जेसन फाइल, बट एज आई सेड जेसन फाइल का आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलने वाला नहीं है. फर्दर, एक बार इनवॉइस रेफरेंस नंबर, यूनिक नंबर जो जनरेट हो गया, अब वो क्या है सर इनवॉइस रेफरेंस नंबर, आप किस रेफरेंस नंबर की बात कर रहे हैं, तो वंस एन इनवॉइस रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड, एक हैश या एक जनरेशन लग जाता है. राइट, वो दैट विल रिमेन यूनिक फॉर ऑल द इनवॉइसेस दैट यू जनरेट. आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, इनवॉइस नंबर नहीं होगा, आपका इनवॉइस नंबर वही रहेगा जो आप इनवॉइस क्रिएट करते वक्त आप इनवॉइस नंबर मेंशन कर रहे हैं. इनवॉइस रेफरेंस नंबर इज नॉट योर इनवॉइस नंबर. इनवॉइस रेफरेंस नंबर एक यूनिक नंबर है, 64 डिजिट का एक यूनिक नंबर है, जो आपको लास्ट टिपिकली कैसे दिखेगा वो हैश, वो आप देख सकते हैं स्लाइड में. इट इज अ 64 डिजिट यूनिक नंबर फॉर द रेफरेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनके लिए ये एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर है और ये हर एक इनवॉइस के साथ अटैच होगा, ताकि आप ये भी चेक कर सकते हैं एज आई सेड कि व्हेनेवर यू वैलिडेटिंग कि आपके सप्लायर ने इनवॉइस सही दिया है या नहीं, वैलिड है या नहीं, तो उसका एक आईआरएन होगा, वो आईआरएन होगा तभी वो वैलिड कहा जाएगा. तो फॉर द वैलिडिटी ऑफ इनवॉइस दिस आईआरएन इज इंपॉर्टेंट. राइट, आईआरएन इज नॉट योर इनवॉइस नंबर. इनवॉइस नंबर, इनवॉइस सीक्वेंस वही रहेगा जो आपने इनवॉइस जनरेट करते वक्त जनरेट किया है, वही जीएसटीआर 1 में मेंशन किया जाएगा, वही आपके रिसिपिएंट या रिसीवर के जीएसटीआर 2 में भी मेंशन होगा, ना कि आईआरएन नंबर.
राइट। तीन पैरामीटर जनरेट यूज किए गए हैं टू फॉर दिस इनवॉइस रेफरेंस नंबर, सप्लायर जीएसटीआईएन नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर फॉर एग्जांपल जो इनवॉइस नंबर है वो, और फाइनेंशियल ईयर की किस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो इनवॉइस जनरेट किया गया है, या इसके थ्रू आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, राइट। सेकेंडली क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्विक रिस्पॉन्स कोड एक टू डायमेंशनल कोड है विच इज अप्लाइड ऑन आइटम प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में वो होता है। आपको वो इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्विक मैनर में अगर आपको चाहिए, जैसा हमने पहले स्लाइड्स में डिस्कस किया कि क्विक रेफरेंस कोड आपको मिलेगा ताकि आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि इनवॉइस की डिटेल्स आपको क्या दी गई है। दैट इज अगेन वन वे टू चेक योर वैलिडिटी ऑफ इनवॉइस। अब वो क्यूआर कोड आपके जेसन फाइल का पार्ट होगा, जो साइंड जेसन फाइल आपको मिली है उसका एक पार्ट क्यूआर कोड होगा। मैंडेटरी है टू प्रिंट क्यूआर कोड ऑन इनवॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी टू प्रिंट क्यूआर कोड ऑन इनवॉइस। इनवॉइस विदाउट क्यूआर कोड इज इनवैलिड अगेन, सो इट इज मैंडेटरी। आप क्यूआर कोड को वहां पे स्पेसिफिकली प्रिंट करके आप चेक कीजिए, एंड इट कैन बी प्रिंटेड एनीवेयर on your invoice, right top left bottom corner, any corner you can print your QR code. The size of QR code is normally 2 by 2 inch, right? However it depends on the size and space available, normally 2 by 2 होता है वो QR code, और it depend करता है कि आपका किस फॉर्मेट कितना साइज अवेलेबल है इनवॉइस में। taxpayer can generate more than one QR code, that is what we also suggest कि आप एक से ज्यादा QR कोड जनरेट करें अपने इनवॉइस पे, ताकि इफ इन केस कोई QR कोड रीडेबल फॉर्मेट में नहीं आए, टाइप प्रिंटिंग में एरर हो जाए या फोल्ड हो जाए, बिकॉज अलॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि अगर इनवॉइस फोल्ड किए जाते हैं तो क्यूआर कोड का रीडेबल फॉर्मेट चला जाता है। सो कंसिडरिंग दैट आपका क्यूआर कोड रीडेबल फॉर्मेट में रहे, इसलिए एडवाइजेबल कि आप मल्टीपल क्यूआर कोड एक इनवॉइस पे प्रिंट करें। Printing the QR code from more than one is advisable. Inkjet printers, do not use inkjet printers. Try to use dot matrix, because recently हमने एक practical difficulty देखी है कि inkjet printer से print किए गए invoices पे जो QR code आता है sometimes it is not in readable format, right? And dynamic QR code, अब एक बड़ा कंफ्यूजन था कि सर डायनामिक क्यूआर कोड, लॉट ऑफ नोटिफिकेशन जो इशू हुए थे उस इशू नोटिफिकेशन में डायनामिक क्यूआर कोड भी मेंशन किया गया था, लेकिन डायनामिक क्यूआर कोड इज फॉर B2C सप्लाईज, जिसको अभी B2C सप्लाईज को ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए भी डायनामिक क्यूआर कोड प्रिंटिंग आपका एप्लीकेबल नहीं है। उसको आप B2B सप्लाईज के साथ कंफ्यूज ना हो। B2B सप्लाई का क्यूआर कोड अलग है, B2C के लिए अलग है, जो अभी एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर B2B invoices. That's it. Nothing more. Right? After the invoice is generated, it is digitally signed. QR कोड आपका जनरेट हो जाएगा। QR कोड आपको कैसे प्रिंट करना है वो हमने मेंशन कर दिया है। इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या है वो, दैट इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस। सो वंस यू गेट अ डिजिटली साइंड जेसन फाइल, आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें। आप उस पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद अपना लोगो लगा सकते हैं उस पीडीएफ पे, अपने कंपनी का लोगो। आपको जो भी कंपनी की डिटेल्स, एडिशनल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो भी मेंशन करना है, that you can mention over there, whatever your accounting software, billing software is, and e-invoice can be sent to your receiver, right? We always suggest upon receiving signed JSON file, एक बार आपके पास signed JSON file आ जाता है तो it is advisable कि आप अपने receiver को signed JSON file भेजें। As in the first slide we said कि signed JSON file is one of those tools through which you can check whether the invoice is valid or not. So once you get a signed JSON file, share with the receiver so that they can also check the validity of your invoices and they can agree accordingly to the format, right? Then once it's done, the PDF signed is required to be signed. The supplier is required to sign in on the PDF copy of invoice as per rule 46. So you cannot say, ऐसे मैंने पहले ही कहा कि सर जेसन फाइल साइंड होके आएगा, मतलब साइंड जो जेसन फाइल है वो आपका सिग्नेचर नहीं है। आप अगर जेसन फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहे हैं तो आपका प्रिंटिंग आपका इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर कि आप उसको प्रिंट करें, साइन करें प्रॉपर्ली एज पर रूल 46 ऑफ CGST एक्ट। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट ई इनवॉइस। अब द वेरी इंपॉर्टेंट इज अमेंडमेंट ऑफ ई इनवॉइस, राइट? ई इनवॉइस कैन नॉट बी अमेंडेड। एक बार आपने ई इनवॉइस जनरेट कर दिया फिर आप ई इनवॉइस को अमेंड नहीं कर सकते। सो ई इनवॉइस कैन नॉट बी एडिटेड और करेक्टेड और अमेंडेड, इट कैन ओनली बी कैंसल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रीजन व्हाई वी से कि इनवॉइस जनरेट करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। वंस यू जनरेट एन इनवॉइस,
you cannot edit or correct, or you cannot do amendments. Only the thing that you can do is you can cancel an invoice, right? So in case an error or mistake, the only option is to cancel an invoice. You cannot edit or amend invoice. Any changes to be done. Now a very important part again to understand, any changes that you are required to be doing invoice, first thing is either you cancel the invoice and generate a new invoice, or the second option that is available to you is that आप GSTR1 GSTR1 में डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा आपका डेटा ऑटोमेटिकली। अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पोर्टल पे फिगर्स और वैल्यूज डायरेक्टली GSTR1 की 3B में और 2B के बेसिस पे आपके 3B में ऑटो पॉपुलेट हो रहे हैं। ई इनवॉइस से भी आपका GSTR1 की डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप GSTR1 फाइल करते वक्त वो इनवॉइस में आप चेंज कर सकते हैं, बट आप ई इनवॉइस में चेंज नहीं कर सकते। बट वी सजेस्ट डू नॉट डू दैट। आप जैसे ही ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद GSTR1 में चेंज करते हैं, व्हाट हैपेंस इज दैट दिस चेंज विल बी फ्लैग्ड टू द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर को वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी, प्रॉपर ऑफिसर को फ्लैग हो जाएगा ट्रांजैक्शन कि आपने ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद GSTR1 में कुछ चेंज किए हैं, एंड दैट इज रीजन व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डू सो। डू नॉट डू ट्राई टू मिनिमाइज दैट आप GSTR1 में चेंजेस ना करें, otherwise proper officer को flag हो जाएगा। Only option that is available is you should cancel an e-invoice. Now sir, what is about cancellation of e-invoice? E-invoice can be cancelled, that is IRN, that is invoice is basically invoice reference number. Invoice reference number can be cancelled within 24 hours. Important, mark this down, 24 hours में आप e-invoice को cancel कर सकते हैं। IRN cannot be cancelled if valid e-way bill exists on this IRN. अगर आपका ई-वे बिल जनरेट हो गया है, आपका ई-वे बिल वेरीफाई हो गया है, तो आप IRN फिर कैंसिल नहीं कर सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट वंस यू जनरेट एन ई इनवॉइस within 24 hours it can be cancelled, but before you generate your e-way bill. Once e-invoice IRN is cancelled, then one or more IRN cannot be generated on the same invoice number. On the same invoice number, you cannot generate a same IRN again. एक बार आपका कैंसिल हो गया IRN, तो आपको इनवॉइस नंबर पे वापस आप IRN क्रिएट करोगे, जेसन फाइल साइंड जेसन फाइल अपलोड करोगे, तो वो वैलिडेट नहीं करेगा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। सो से फॉर एग्जांपल 105 आपका इनवॉइस नंबर था, इफ यू जनरेट इन 105 पे आपने IRN जनरेट किया, इट गेट्स कैंसल्ड, फिर वापस 105 पे आप इनवॉइस जनरेट IRN नंबर जनरेट नहीं कर सकते। सो 105A 105B और 106 whatever the number is, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। सेकेंडली, once the invoice is generated, सारा डेटा GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। all your transactions will go to GSTR1 the moment you generate an invoice, GSTR1 में वो अपलोड हो जाएगा। अब सर 24 आवर्स में कैंसिल करना हो तो हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं? टू कैंसिल योर इनवॉइस, व्हाट इज द वे ऑफ कैंसिलेशन इज partial cancellation is not allowed. You cannot do a partial cancellation of e-invoice, right? Mandatory full in total ही आपको कैंसिल करना पड़ेगा। So say for example, अगर आपने 4 क्वांटिटी मेंशन की है, आप उनको वहां पे 4 में से 2 को कैंसिल कर सकते हो, वैसा पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा का पूरा e-invoice कैंसिल करना पड़ेगा, right? IRN can be cancelled within 24 hours, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। If e-way bill is generated, IRN cannot be cancelled and IRN cannot be regenerated on the same document number. So because of this, it becomes very important कि जब भी आप e-invoice generate करें, please take an additional care while generating an e-invoice. It is very very important to understand. As I said, e-invoice and e-way bill can be generated together. आप ई-वे बिल का जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वही आप ई इनवॉइस का पोर्टल का आपका लॉगिन क्रेडेंशियल होगा। आपका पार्ट ए पार्ट बी ऑटोमेटिकली स्कीमा में जनरेट किया गया है, जो हमारा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है वहां पे ऑलरेडी ये दिया गया है। ट्रांसपोर्टर आईडी एंड डिस्टेंस अलोंग विद इनवॉइस डिटेल आर सेंट बाय IRP, देन ओनली पार्ट ए ऑफ ई-वे बिल विल बी जनरेटेड। IRP आपको ट्रांसपोर्ट आईडी और वो मेंशन करेंगे। पार्ट बी आप ई-वे बिल जनरेट करते वक्त आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, right? If not required to it is not required to carry a physical copy of an e-invoice if the e-invoice with QR code can be shown to digital and mobile to the proper officer. The moment your goods are being transported or e-way bill is generated, proper officer को आप सॉफ्ट कॉपी में भी अपना QR कोड मेंशन करके आप
वहां पे वेरीफाई करवा सकते हैं, फिजिकल कॉपी ले जाने का जरूरत नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी। एज वेल एज बिल टू इज रेलेवेंट फॉर ई इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग में बहुत ही रेलेवेंट है आप बिल टू किसको करते हो, बट शिप टू इज रेलेवेंट फॉर e-way bill generation, right? Because a lot of times you bill to X but you ship to Y on behalf of X, so bill to is relevant for e-invoice, ship to is relevant for your uh, जी e-way bill, that is the shipment of your or the transportation of your goods are. The port code is not mandatory, port code अभी आप in case of export transactions port code mandatory नहीं है, as well as आप API integration, as we said access integration, जो आपका API integration है, जो आप बिलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, बिलिंग सॉफ्टवेयर से आप अपने ईवे पोर्टल पे, इनवॉइस पोर्टल पे कर सकते हैं। सिमिलरली आप ईवे बिल का भी आप एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं ईवे बिल विथ एपीआई इनवॉइस रेफरेंस नंबर, that can also be do that can also be done, or you can get a better information from einv dash apis and box dot nic dot in mapping of e-way bill schema, right? So from there also you can do, you can generate or you can do API integration of e-invoice and e-way bill, right? E-way bill will be generated by using IRN, as you already mentioned, आपका IRN invoice reference number होगा, उसी के बेस पे आपका e-way bill बनेगा। Seamless integration किया गया है between e-invoice and e-way bill. Once your e-invoice gets generated, it is very easy to generate an e-way bill, right? And e-way bill generated in IRN are available immediately on e-way bill portal. e-way bill portal पे आप जैसे ही IRN generate करते हो, API integration करते हो, आपका e-way bill portal पे भी आपको easily available है, right? So next part is e-invoice and GST returns. Now as I said, सक्सेसफुली आप जैसे ही रिपोर्ट करते हो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर, आपका आईआरएन जनरेट होता है। द मोमेंट आईआरएन गेट्स जनरेटेड, वो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A एंड 6A ऑफ जीएसटीआर 1 ऑटो रिटर्न्स, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 6A ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा इनवॉइस के बेसिस पे। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपका ई इनवॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ई इनवॉइस अगर आप जनरेट करने मिस्टेक करते हैं तो आपका जीएसटीआर 1, 2A में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इन दैट केस आप जीएसटीआर 1 को जाके चेंज कर सकते हैं, बट वी एडवाइज डू नॉट डू दैट, बिकॉज वंस यू डू इट विल बी फ्लैग्ड टू प्रॉपर ऑफिसर कि ई इनवॉइस जनरेट करते वक्त और जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त कुछ चेंजेस किए गए हैं, राइट? T+1 बेसिस पे, 1-to-1 बेसिस पे ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A, एज वेल एज आपका ई इनवॉइस मार्क्ड होगा जैसे ही आप जीएसटीआर 1 चेक करते हैं। अभी क्या होता है कि जीएसटीआर 1 में आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, क्वांटिटी, टैक्स मेंशन किए गए हैं। द मोमेंट ई इनवॉइस विल बी एप्लीकेबल टू यू, आप जैसे ई इनवॉइस जनरेट करके वो डेटा अगर आपका जीएसटीआर 1 में जाता है तो उसमें एक मार्क आ जाएगा कि आपने ई इनवॉइस जनरेट किया हुआ है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर वहां पे मेंशन किया गया है और इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेशन का डेट वहां पे मेंशन किया गया होगा। तो अभी आप सिर्फ इनवॉइस डेट में हम मेंशन करते हैं, बट जैसे आप जीएसटीआर 1 ई इनवॉइस के थ्रू फाइल करेंगे, आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी वहां आ जाएगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर डेट भी वहां मेंशन हो जाएगा ऑन दैट जीएसटीआर 1, राइट? e-invoice and GSTR1, as I said, any changes if you do, पोर्टल पे आप कोई भी चेंज करते हैं प्रॉपर ऑफिसर को फ्लैग हो जाएगा। कौन सी डिटेल्स ऐसी हैं जो आपके GSTR1 में ई इनवॉइस के थ्रू जाएगी? सो दैट इज योर B2B इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स, एज वेल एज एचएस एंड वाइस समरी। B2C ट्रांजैक्शन के लिए, एज यू आर नॉट जनरेटिंग एन ई इनवॉइस, अभी आपका B2C ट्रांजैक्शन इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा है, तो B2C ट्रांजैक्शन के लिए वो इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। सो जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि आपका B2C आप प्रॉपर्ली वहां पे मेंशन करें। आप ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 1 डू नॉट फाइल इट, बिकॉज ओनली B2B एक्सपोर्ट्स, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स विच आर जनरेटेड थ्रू ई इनवॉइस ही आपके जीएसटीआर 1 में जा रहा है। B2C ट्रांजेक्शन्स, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रांजेक्शन्स और उसके रिलेटेड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अभी जीएसटीआर 1 में पॉपुलेट नहीं हो रही है, राइट? इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ आईआरएन, जीएसटीआर 1 में भी वो कैंसल्ड आईआरएन का स्टेटस दिखाएगा। सो अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद आप उसको अगर कैंसिल करते हैं तो वो कैंसलेशन का भी स्टेटस आपके जीएसटीआर 1 में दिखाएगा कि कितने आईआरएन जनरेट हुए और कितने आईआरएन वहां पे कैंसिल हुए, दैट विल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड ओवर देयर। सो एज ऑफ नाउ अगर आप जीएसटीआर 1 अभी डॉक्यूमेंट कैंसल्ड करके वहां पे एक टैब आता है जो मेंशन करते हैं नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड, इनवॉइस इशूड, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इनवॉइसेस कैंसिल्ड, वही सेम स्टेटस में ये वहां पे भी मेंशन हो जाएगा।
राइट। सो दिस इज हाउ GSTR1 GSTR2 ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। GSTR2 ऑटो पॉपुलेट होने से GSTR2 भी और क्लाइंट को GSTR3 में रिसीवर को GSTR3 में भी वो ऑटो पॉपुलेटली डिस्क्लोज हो जाएगा। अदर रेलेवेंट पॉइंट्स फॉर ई इनवॉइसेस, ई इनवॉइस जहां जहां एप्लीकेबल है, जिसको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है उनको इनवॉइस डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट में जनरेट करने का जरूरत नहीं है। IRN जनरेट होना चाहिए बिफोर यू डू अ मूवमेंट ऑफ गुड्स or other issuing the invoices. Very very important. Before the movement of goods generate IRN. IRN अगर movement of goods के पहले generate नहीं हुआ तो invoice valid नहीं है। आपका movement of goods valid नहीं किया जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर आपको स्ट्रिक्ट एक्शंस कंडक्ट करेगा अंडर ई-वे बिल प्रोविजंस। सो ई-वे बिल मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए जहां पे ई-वे बिल एप्लीकेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक IRN जनरेट करे, इंपॉर्टेंट है। वंस IRN जनरेटेड देन ओनली ट्राई टू जनरेट ई-वे बिल, बिकॉज IRN is very important. As we know, IRN is only the invoice reference number, but वही validate करेगा कि आपका invoice valid है या right. Maximum number of line items अभी 1000 है। As of now there are 1000 line items in that invoice. आपको और ज्यादा चाहिए तो आप वहाँ पे presently you can report that in case you are requiring more than 1000 support .einv.api@gov.in पे आप वहाँ पे mention करके आपको more than that can be made available to you. Otherwise 1000 line items are mentioned as of now, which would be probably important for you to generate an e-invoice. More further, और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है फॉर ई इनवॉइसेज, दैट whenever you generate an e-invoice, cultivate a practice of sending a signed JSON file to your receiver so that they can also verify that they can mention that whether the details mentioned over there are correct or not. If in case they are not correct, you can cancel that invoice within 24 hours. So cultivate a practice of sending a signed JSON file to your receiver, as well as अगर आपके सप्लायर के पास से आप अगर साइंड जेसन फाइल लेते हैं तो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको स्टोर करके रखें। इट वुड बी it will be giving a good chance कि आप सारे JSON फाइल स्टोर करके मेंशन करके वहाँ पे चेक करें। फर्दर, ऑल इनवॉइसेस दैट आर जनरेट टू ई इनवॉइस, उसका एक अलग से एज वी हैव डिस्कस कि IRN नंबर जनरेट होगा। IRN स्टोर करने का, IRN लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आपका इनवॉइस नंबर ही IRN नंबर होगा। और हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक डिस्कस किया है कि अगर आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, डायनामिक क्यूआर कोड अभी एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज प्रोबेबली एक्सपेक्टेड टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2021. सो डायनामिक क्यूआर कोड इज नॉट एप्लीकेबल, ओनली क्यूआर कोड इज एप्लीकेबल फॉर B2B ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस, जो आपको एनीवे साइंड जेसन फाइल के साथ ही मिलेंगे। मोर इंपॉर्टेंट, जो हमने टर्नओवर की बात कही, टर्नओवर में ऐसा है कि अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर कभी भी कोई भी फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड होता है तो उस केस में आपको नेक्स्ट ईयर से ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। सो से फॉर एग्जांपल अगर आप अभी कहते हैं कि सर हमारा 100 करोड़ का टर्नओवर इन दिस ईयर इट इज गेटिंग एक्सीडेड, देन फ्रॉम 1st April आपको एप्लीकेबल होगा ई इनवॉइस, ना कि इन द करंट ईयर। सो अगर आपका दिसंबर में 100 करोड़ टर्नओवर एक्सीड होता है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST, if turnover of 100 crore gets exceeded in this December, then January से invoice applicable नहीं होगा, आपको 1st April से ई invoice applicable होगा। So ई invoice 100 करोड़ की turnover for the financial year consider करता है since GST implementation. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे मिथ्स या वो कंसीडर है कि आपको ई इनवॉइस के लिए 100 करोड़ का टर्नओवर में एक्सपोर्ट इनवॉइसेस नहीं गिनने हैं। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन से बात किया गया है। एग्रीगेट टर्नओवर में चाहे आप एक्सपोर्ट्स करो, आप B2B सप्लाईज करो, B2C सप्लाईज करो, आपको 100 करोड़ का टर्नओवर एप्लीकेबल होगा। सेकेंडली, वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको सर अगर हमारा 100 करोड़ का टर्नओवर है और हमें अनेबल नहीं किया गया है तो क्या, आप ई इनवॉइस पोर्टल पे जाके अपना चेक कर लीजिए आपका GSTN नंबर 1st January से इट इज अनेबल्ड और नॉट। इफ इट इज नॉट अनेबल्ड, आप जाके वॉलेंटरी उसको अनेबल कर दीजिए ताकि आप ई इनवॉइस जनरेट कर पाए। अभी एज ऑफ नाउ ई इनवॉइस वही जनरेट कर पा रहे हैं जिसका टर्नओवर अबव 100 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर प्रीवियसली दिया गया है। पर अगर आपका भी 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर एक्सीड हुआ है पर आप इनवॉइस नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अनेबल दैट ऑन बाय गोइंग टू इनवॉइस पोर्टल। इनवॉइस पोर्टल पे जाकर उसको अनेबल कीजिए ताकि आपको ई इनवॉइस जनरेट करने मिले। With very few days to go for e-invoice, as I said, very few days are left for implementation on 1st January. E-invoice ट्रायल जो वेबसाइट है e-invoice1 trial.gst.gov.in पे आप जाइए, वहां पे जाके अपने ट्रायल जनरेट कर सकते हैं
आप वेरीफाई कर सकते हैं वेदर इनवॉइस आर प्रॉपर्ली जनरेटेड और नॉट। द मोमेंट यू क्रिएट अ ट्रायल, ये ट्रायल आपके पास जो क्रिएट होगा वो वैलिड इनवॉइस नहीं है, ना कि वो इनवॉइस गवर्नमेंट उसको कोई भी इंफॉर्मेशन उसके लिए यूज करेगा। इट इज जस्ट मियर अ ट्रायल दैट यू हैव बीन डूइंग। सो आप नॉर्मल जो इशू कर रहे हैं वही इनवॉइस इशू कीजिए। ट्रायल इनवॉइस जनरेट करने के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर हमने ट्रायल जनरेट किया तो हमारा वो वैलिड इनवॉइस हो गया। नहीं, आपका इनवॉइस जो अभी जनरेट किया गया 1 जनवरी से पहले वही वैलिड है, क्योंकि आपको ई इनवॉइस 1 जनवरी के बाद एप्लीकेबल होगा इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर इज अबव 100 करोड़। So anytime before that if you're doing a trial run, in that case ट्रायल रन में आपको ई इनवॉइस वैलिड नहीं किया जाएगा, ना कि वो इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर की जाएगी या यूज की जाएगी। So this is all about what we are discussing of e-invoice. A very important part, हमने पूरा e-invoice का सेमिनार 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, where we started कि e-invoice whether it is applicable or not, why it is important. Secondly, we saw the basic details of e-invoice, right? Third part what we saw was कि how to create or how to generate an e-invoice. And fourth thing what we have observed is कि e-invoice generate होने के बाद e-way bill GST returns में उसका implementation या उसका कैसे होगा, right? So with this, I thank you all for watching this. I thank you.